Okay, now let us solve 22nd question. So 22nd question में क्या प्रूव करना है? We have to prove that summation r varying from 1 to 9 tan r alpha into tan r plus 1 alpha is equals to cot alpha into tan n plus 1 alpha minus n minus 1. So हमें क्या प्रूव करना है? Summation r varying from 1 to n tan r alpha into tan r plus 1 alpha. What is this equals to? This is equals to cot alpha into tan n plus 1 alpha minus n minus 1. ये हमें प्रूफ करना है. Now what should be the way to prove this? Let us see. एक चीज मुझे यहाँ दिख रही है, there are just two terms dependent upon it. एक तो ये टर्म और एक ये वाली टर्म. तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ? Summation r varying from 1 to n tan r alpha into tan r plus 1 alpha plus 1. This is equals to cot alpha into tan n plus 1 alpha minus 1. True. n I have written in this summation. जब मैं summation के अंदर n को ले गई तो ये इस तरीके से हो जाएगा. तो what we have is tan r alpha into tan r plus 1 alpha plus 1. This should be equals to cot alpha into tan n plus 1 alpha minus 1. Clear है? Just इस n को अगर हम summation के अंदर ले जाएंगे तो इस तरीके का हो जाएगा. We all understand this. Now let us try and analyze this term tan r alpha into tan r plus 1 alpha plus 1. मैंने आपको पहले भी समझाया था कि इस तरीके के समेशन में सीरीज पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि इस टर्म को आने वाली टर्म्स के या फिर पिछली टर्म्स के टर्म में एक्सप्रेस करें. तो देखते हैं वी हैव कैसे कर सकते हैं इस चीज को. tan r alpha into tan r plus 1 alpha plus 1. Okay, let us expand this. तो हो जाएगा sin r alpha cos r alpha into sin r plus 1 alpha into cos r plus 1 alpha plus 1. So इसको फैक्टराइज कर लेते हैं. So we have cos r alpha into cos r plus 1 alpha. So न्यूमरेटर में देखिए क्या है, sin a into sin b plus cos a into cos b. So this is the formula of cos a minus b. So this would be cos r plus 1 alpha minus r alpha upon cos r alpha into cos r plus 1 alpha. Perfect. So cos r plus 1 alpha minus r alpha is nothing but cos alpha upon cos r alpha into cos r plus 1 alpha. Okay, हमें यहाँ से cos alpha की टर्म मिल गई. बट स्टिल व्हाट वी हैवंट अचीव्ड इज हम इस चीज को किसी भी चीज के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टर्म्स में अभी भी नहीं एक्सप्रेस करता. हमें वो करना है. और एक और चीज देखिए, हमें यहाँ पे cot alpha की टर्म मिली तो हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं cot alpha की टर्म भी लानी ही पड़ेगी. लेट अस डू वन थिंग. लेट मी मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय sin alpha. सो क्या हो जाएगा cos alpha अपॉन sin alpha. तो ये तो मेरी cot alpha की टर्म बन गई इनटू sin alpha अपॉन cos r alpha minus cos r इंटू cos r plus 1 alpha. ये टर्म हमें यहाँ पे मिली. सही है यहाँ तक? So what do we get? We know now this guy is equals to cot alpha into sin alpha. sin alpha को मैं क्या लिख सकती हूँ? sin r plus 1 alpha minus r alpha. मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि डिनोमिनेटर में मुझे cos r alpha और cos r plus 1 alpha की टर्म्स मिली थी और ऊपर sin alpha था. तो मैं sin alpha को इजीली इस फॉर्म में
लिख सकती थी अपॉन cos r alpha into cos r plus 1 alpha. Perfect. Now this is equals to cot alpha sin a minus b का फॉर्मूला लगाते हैं तो we have sin r plus 1 alpha into cos r alpha minus cos r plus 1 alpha into sin r alpha upon cos r alpha into cos r plus 1 alpha. And what will this be equals to? देखिए, this will be equals to cot alpha into cos r plus 1 alpha cancel हो जाएगा तो we'll have sin r cos r alpha cancel हो जाएगा तो we'll be having sin r plus 1 alpha upon cos r plus 1 alpha which is tan r plus 1 alpha minus यहाँ पे cos r plus 1 alpha cos r plus 1 cancel हो जाएगा तो we'll be left with sin r alpha upon cos r alpha which is nothing but tan r alpha. So what do I get? I am getting this guy tan r alpha minus tan r plus 1 alpha plus 1 is nothing but cot alpha into tan r plus 1 alpha minus tan alpha. तो अब देखिए हमें cot alpha की टर्म मिल गई जो हमें क्वेश्चन में चाहिए थी और हमने इसको दो टर्म्स के समेशन एक डिफरेंस में भी एक्सप्रेस कर दिया है. Now what we need is we want to find the value of summation r varying from 1 to n tan r alpha into tan r plus 1 alpha plus 1. So this would be summation r varying from 1 to n cot alpha into tan r plus 1 alpha minus tan r alpha. So this thing which was here has now reduced to this. Perfect. अब देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. अब देखिए this would be equals to cot alpha हम सब में से कॉमन निकाल सकते हैं. When r would be 1 this would be tan alpha 2 alpha minus tan alpha. जब r 2 हो जाएगा तो tan 3 alpha minus tan 2 alpha and this will carry till r till n r equals to n. So यहाँ पे हो जाएगा tan n plus 1 alpha minus tan n alpha. Perfect. अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा similarly ये कैंसिल हो जाएगा तो what will be left with is the term that will be left with is cot alpha into tan n plus 1 alpha minus tan alpha because the term that will be remaining here is this term tan n plus 1 alpha और यहाँ से हमें tan alpha की term मिलेगी and what will this be equals to? This will I can write will be equals to cot alpha into tan n plus 1 alpha minus 1 because cot alpha into tan alpha would be 1 and this is what we have to prove in question. This is equals to cot alpha into tan n plus 1 alpha minus 1. So clear है कैसे prove किया? See वही the main only important part is कि whenever we have such questions which is like summation of some series or some pattern, most important is we have to express each individual terms as a difference और summation of the coming terms. अगर हम first term और second term में कोई relation establish कर दे जिससे consecutive terms cancel होती जाए तो question solve करना बहुत ही आसान हो जाता है and this is the only approach to solve such type of questions. Perfect. I think अब हमने इस pattern पे हमने काफ़ी question solve कर लिए. Almost I feel हम 18 से 22 तक हमने इसी pattern पे based question solve किया है. तो आई होप अब आप सभी को इस पे कंफर्ट लेवल आ गया होगा और हमने काफी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की है. इज दैट क्लियर? सो नाउ सॉल्व 23rd क्वेश्चन व्हिच इज रियली एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. क्वेश्चन में मैथमेटिक्स तो ज्यादा नहीं है बट एनालिटिकल एंड कॉन्सेप्चुअल इट्स अ वेरी साउंड क्वेश्चन. लेट अस सॉल्व 23rd क्वेश्चन नाउ. Okay, now let us solve question number 23. Actually,
I am calling this as a challenger question. The one who solves this question completely, first, second और third part का बिल्कुल correct answer देगा, I'm going to give him a chocolate. That guy is going to get brownie points for solving this question. I mean, this is a very good question. That's what I'm telling. The beauty of this question is कि इस question में mathematics तो बहुत ही कम है. I mean, it was really less of mathematics. When calculation wise, it is very less. But the concept and the analytical part of the question is very good. I mean, इसमें बहुत सारे chapters का concept लगता है. Plus, the question has got really good concept. That's what I'll say. So this is a brownie question. The one who solves this correctly is surely going to get chocolate from our side. So I mean, I want to see now exactly कौन इस question को अच्छे से solve करता है. देखिए, attempt तो कीजिए कम से कम. Let us see what the question says first. So question is telling, in a triangle ABC, we have tan A plus tan B plus tan C as K. We have to find the interval in which K should lie such that there exists only one isosceles triangle ABC. There exist exactly two isosceles triangle ABC, and third they are asking is, can there exist three non-similar isosceles triangles for any real value of K. So 23rd question को समझते हैं. एक बार फिर question ही पढ़ते हैं. In a triangle ABC, tan A plus tan B plus tan C is K. Okay? तो हमारे पास एक triangle ABC है जिसमें I know tan of A plus tan B plus tan C is equals to some value or constant, let us say K. Okay? हमें अब K का interval बताना है. We have to find the interval in which K should lie. So that first there exists only one triangle, isosceles triangle ABC. So हम चाहते हैं एक ही ऐसा isosceles triangle ABC exist कर पाए such that tan A plus tan B plus tan C is K. Then the second range is there exists two isosceles triangle ABC. K की वो values जिसके लिए दो ऐसे isosceles triangle का combination मिल जाए जिनमें tan A plus tan B plus tan C तो K हो और ट्रायंगल्स आइसोसेलेस हो. और फिर पूछते हैं कि क्या इस कंडीशन को सैटिस्फाई करते हुए तीन यूनिक आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हमें मिल पाएंगे या नहीं. ये क्वेश्चन में पूछा गया है. ओके, सो लेट अस सी द क्वेश्चन इज, हमें इस वैल्यू के लिए K की वो रेंजेस निकाली इन कंडीशंस के लिए कि एक ही ऐसा आइसोसेलेस ट्रायंगल इस कंडीशन को सैटिस्फाई कर पाए, दो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स इस कंडीशन को सैटिस्फाई कर पाए और फिर तीन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स इस कंडीशन को सैटिस्फाई कर पाए. ये हमें पता करना है. ओके, so let us say we have a isosceles triangle satisfying this condition. Okay, let us say we have a triangle ABC in which angle A is equals to angle B. Okay, the moment I say angle A is equals to angle B, which means it is an isosceles triangle. Okay, अब angle A equals to angle B, और angle some property से मैं already जानती हूँ, angle A plus angle B plus angle C is equals to 180 degrees. 2. So what do I get is 2 angle A, because angle A is equals to angle B, plus angle C is going to be 180 degrees. Perfect. And what do I already know? Tan A plus tan B plus tan C is K. So let us rewrite this equation. Tan A plus tan B को I can write again as tan A plus tan C. From this equation I can write C as 180 minus 2A, and now this is equals to K. So let us say this is our one equation and this is our two equation. So from 1 and 2 this is the result what I can derive. Clear till this point? So I can write this as 2 tan A minus 180 minus theta is tan, 180 minus theta is minus tan theta. So this would be minus tan 2A, this is equals to K. Okay, and what is tan 2? It is 2 tan A upon 1 minus tan square A. So I can simplify this as 2 tan A 1 minus 1 upon tan square A, this is K, or this can be written as 2 tan A into 1 minus tan square A minus 1 minus tan square A minus 1 equals to K into 1 minus tan square A. So this can be written as 1 and 1 will get cancelled. So we have minus 2 tan cube A is equals to
k minus k tan square a. Or now what we do is, let us say tan a equals to x. ठीक है, which means this equation will convert to 2x cube equals to k minus kx square minus 2x cube equals to, because this is minus 2 tan square a, so we have minus 2x cube plus k equals to k minus kx square, or 2x cube minus kx square plus k equals to 0. Clear है यहाँ तक? So what we have got is, we have a cubic in terms of tan a, and the substitution is x is equals to tan a. Now one thing I am telling here is that tan a is always going to be greater than 0. जब मैं ये रिजल्ट कहती हूँ तो क्या आपको ये रिजल्ट जस्टिफाइड लगता है कि tan a हमेशा a 0, tan a will be always greater than or equals to 0? See, the reason being, angle A is equals to angle B. Okay? और हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल में इफ इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो जो दो एंगल्स इक्वल है वो कभी भी ऑब्ट्यूस नहीं हो सकते. अगर दो एंगल्स ऑब्ट्यूस हो गए, एंगल में दो इक्वल एंगल्स ऑब्ट्यूस हो गए, तो एंगल सम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी. अगर एक एंगल 180 है, सॉरी एक एंगल अगर 100 है और दूसरा भी 100 है, तो अपने आप ही 200 सम हो गया. सो अगर दो एंगल्स इक्वल है, टू आइसोसेलेस एंगल्स हैव टू बी एक्यूट इन अ ट्रायंगल. दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग. क्योंकि अगर दो एंगल्स 90 से बड़े हो गए तो एंगल सम प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई होगी नहीं. सो बेसिकली ट्रायंगल में सिर्फ एक ही एंगल 180 से बड़ा हो सकता है, ये तो हम जानते हैं. सो आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो दो आइसोसेलेस एंगल्स इक्वल है वो तो ऑब्ट्यूस हो ही नहीं सकते, बिकॉज ओनली वन एंगल इन अ ट्रायंगल कुड बी ग्रेटर देन 90 degree, could be obtuse, which means A is going, because A is going to lie between 0 to pi by 2 only. So हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेंगे, और क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे तो tan A हमेशा 0 से बड़ा होगा. This implies x equals to tan A both have to be greater than or equals to 0. True? Very true? Okay. So now we have got a quadratic here, which is 2x cube minus kx square plus k equals to 0. Now let me differentiate this quadratic, because क्योंकि मैं इस quadratic को plot करना चाहती हूँ. Okay, so we'll get 6x square minus 2kx equals to 0. So let me take 2 common, 2x common, so we are left with 3x minus k equals to 0. So what are the point of maxima and minima? Critical points here are 0 and k by 3. So 0 and k by 3 are the critical points for my this quadratic equation. Okay, I hope critical points सब भी समझते हैं. अगर आपने application of derivatives पढ़ा है पहले, so you know these are the points where the graph changes its concavity. Okay, no sorry, critical points are the points जहाँ पर ग्राफ या तो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, मिनिमम वैल्यू अटेन करता है. जहाँ पर कॉन्केविटी चेंज होती है उसका हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं. ट्रू? सो दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स फॉर माई ग्राफ. यहाँ पे ग्राफ का मैक्सिमा होगा या ग्राफ का मिनिमा होगा. इन केस अगर आप इन टर्म से एक्वेंटेड नहीं है, लेट मी टेल यू व्हाट इज अ मैक्सिमा एंड अ मिनिमा. सी, आई विल से दिस पॉइंट इज अ मैक्सिमा अगर इसके विसिनिटी में जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी वैल्यू इससे कम हो, एंड आई विल से दिस पॉइंट इज अ मिनिमा अगर इसके विसिनिटी में जितने भी पॉइंट्स है, दिस इज x. तो अगर x प्लस h और x माइनस h पे जितने भी पॉइंट्स है उनकी वैल्यूज x से कम हुई तो x पे मैक्सिमा होगा, और अगर x पे की वैल्यू x प्लस h और x माइनस h की वैल्यू से छोटी हुई तो x पे मिनिमा होगा. सो वेल दिस इज अ वेरी ऑब्वियस टर्म. आई विल से जब आप मैक्सिमा और मिनिमा समझते हैं तो ही समझिए कि मैक्सिमा इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट वुड बी अटेन्ड and minima is the minimum value that would be arranged in the vicinity. Again throughout हम maximum minima नहीं कह रहे, सिर्फ vicinity का ही maximum minima कह रहे हैं. When you study application of derivatives and functions, so you will understand these terms in very detail,
तब तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बट राइट नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि क्रिटिकल पॉइंट्स पे मैक्सिमम मिनिमम मिलता है। क्रिटिकल पॉइंट्स वो है जिन पे dy बाई डी एक्स 0 हो जाता है। सो यहाँ पे 2 पॉइंट्स पे 0 मिला, दैट इज 0 और k बाई 3, और इन पे हमें कर्व का मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा। ओके, नाउ देयर कुड बी 3 कंडीशंस हियर, either k could be positive, k could be 0 and k could be negative. Okay, so let us first analyze the first case. Let me call it case 1. When I am telling my k is going to be greater than 0, I am considering k to be positive. अब देखिए यहाँ पे 3 तरीके का ग्राफ प्लॉट हो सकते हैं। जब k 0 है तो अब मैं इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना चाहती हूँ। ठीक है, अब एक चीज देख लीजिए इस फंक्शन के बारे में, 2x³ माइनस kx² प्लस k। ओके, 2x³ माइनस kx² प्लस k इक्वल्स टू 0। सिंस इट इज अ क्यूबिक फंक्शन तो इसके 3 रूट्स होंगे। ओके, क्यूबिक फंक्शन है तो 3 रूट्स होंगे, क्वाड्रेटिक फंक्शन होते हैं तो 2 रूट्स होते हैं। सो सिंस इट इज अ क्यूबिक फंक्शन इट इज गोइंग टू हैव 3 रूट्स। पक्का? ओके, द नेक्स्ट थिंग, जब x इंफिनिटी के टेंड करेगा तो दिस फंक्शन विल टेंड टू इंफिनिटी, क्योंकि 2 इंटू इंफिनिटी का क्यूब प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी स्क्वायर प्लस सम इंफिनिटी, सो इट इज गोइंग टू टेंड टू प्लस इंफिनिटी। और अगर ये माइनस इंफिनिटी के टेंड करेगा तो फंक्शन भी माइनस इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा, क्योंकि अब माइनस इंफिनिटी क्यूब होने वाला है। ओके, सो व्हेन द फंक्शन टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी, when x tends to plus infinity, this function tends to plus infinity, and when x tends to minus infinity, this function even tends to minus infinity. अब यहाँ पे क्या केस हो सकते हैं? मैंने कहा k 0 से बड़ा है, ठीक है, तो क्या क्या केस में ग्राफ बन सकता है? ग्राफ किन किन तरीकों से दिख सकता है? एक केस तो ये हो जाएगा, देखिए एक केस तो ये हो जाएगा कि ग्राफ कुछ इस तरीके का हो। ठीक है, पहला केस हमने कंसिडर किया है कि k 0 से बड़ा है। सो यहां पे आएगा k बाई 3 और यहां पे आएगा मेरा पॉइंट 0। ठीक है, अब मैं क्या जानती हूँ 0 और k बाई 3 पे मैक्सिमा और मिनिमा होगा। ठीक है, जब फंक्शन x माइनस इन्फिनिटी की टेंड करेगा तो फंक्शन यहाँ पे होगा, और जब प्लस इन्फिनिटी की टेंड करेगा तो ग्राफ भी प्लस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। तो ग्राफ अब किस तरीके का हो सकता है? एक तो होगा कि ग्राफ कुछ इस तरीके का बन जाए, एक केस तो ये हो सकता है। सो लेट मी कॉल दिस एज केस 1। ओके, द नेक्स्ट केस कुड बी कि मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके का बने। लेट मी से दिस इज 0 एंड ये पॉइंट है k बाई 3। सो ग्राफ कुछ इस तरीके का बने, देखिए, विच मीन्स k बाई 3 पे फंक्शन का भी रूट है। ओके, सो लेट अस कॉल दिस एज केस 2। और थर्ड केस क्या हो सकता है? कुछ ऐसा कि ये अब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे ही ना, तब फंक्शन कैसा होगा? कुछ इस तरीके का। ओके, सो k बाई 3 पे अब मिनिमा तो है, सी इन तीनों केसेस पे क्या हो रहा है? 0 पे मैक्सिमम मिल रहा है और k बाई 3 पे हमको मिनिमम वैल्यू मिल रही है। इसमें क्या हो रहा है? फंक्शन के 2 रूट्स हैं, इसमें एक ही रूट है और इसमें एक भी रूट नहीं है। We call it case 3. Okay, one thing is very clear. So what we have got here is when k is greater than 0, either the curve would intersect the graph at 2 points. So यहाँ पे x की 2 पॉजिटिव रियल वैल्यूज होगी। देखो x की 3 रियल वैल्यूज है, ठीक है, बट वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन दिस रेंज व्हेन tan e इज ग्रेटर देन 0 या फिर x इज ग्रेटर देन 0। तो हमें x की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए। तो एक केस हो सकता है कि x की 2 पॉजिटिव वैल्यूज हो, यहाँ पे x की एक भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं, एक पॉजिटिव वैल्यू, और यहाँ पे x की एक भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं है। मतलब यहाँ पे tan a की 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज मिली, यहाँ पे tan a की एक डिस्टिंक्ट वैल्यू मिली, और यहाँ पे tan a की एक भी डिस्टिंक्ट वैल्यू नहीं मिली।
मतलब यहां पर दो ग्राफ्स पॉसिबल, दो ट्रायंगल्स पॉसिबल हैं, बिकॉज हमें tan A की दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज मिल रही है। यहाँ पे एक ही ट्रायंगल पॉसिबल है क्योंकि हमें यहाँ पे tan A की एक ही रियल पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है और यहाँ पे एक भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे tan A की एक भी रियल वैल्यू नहीं मिल रही है। ओके, अब केस 2 देखते हैं। केस 2 में कहूंगी जब मेरा k जो है वो 0 से छोटा हो। ओके, केस 2, let us say when my k is negative. परफेक्ट। सो अब देखिए, अब ग्राफ कैसे प्लॉट होंगे। ओके, 0 एंड लेट अस से दिस इज k by 3। प्लस इंफिनिटी पे ग्राफ को यहां जाना है और नेगेटिव इंफिनिटी पे ग्राफ को यहां जाना है। सो k by 3 पे अब मैक्सिमा होने लगेगा और 0 पे मिनिमा होने लगेगा। सो एक कंडीशन में तो ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है, ये एक कंडीशन हो गई। सेकेंड कंडीशन में ग्राफ कैसा बन सकता है? I'll say the second condition would be okay, ग्राफ कैसा बने? दिस इज 0, दिस इज k by 3। सेकेंड कंडीशन में I'll say ग्राफ कुछ इस तरीके का बने, 0 पे मिनिमा, और एक कंडीशन होगी जब ग्राफ ऐसा बनेगा। यहां होगा k by 3, लेट अस से दिस इज 0, यहां पर मैक्सिमा होगा और यहीं पे मिनिमा भी होगा। Let me draw it more clearly. Let us say ये पॉइंट है k by 3 और ये है 0। सो ग्राफ अब कुछ ऐसा बनेगा। ओके, एक कंडीशन में ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। सो लेट अस से दिस इज अवर केस 1 हियर। This is our case 2 here and this is our case 3 here। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या होने वाला है। यहां पर क्या होगा, x की एक पॉजिटिव रियल वैल्यू, मतलब tan A की एक ही डिस्टिंक्ट रियल वैल्यू मिली। सो यहां पर हमें कितने ट्रायंगल्स मिल सकते हैं? एक, क्योंकि tan A की एक ही डिस्टिंक्ट वैल्यू है तो हमें यहाँ एक ही ट्रायंगल मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर tan A की एक ही पॉजिटिव रियल वैल्यू मिलने वाली है यहां पर, तो यहां पर हमें फिर से एक ही डिस्टिंक्ट ट्रायंगल मिलेगा। और यहां पर थर्ड केस में भी हमारे पास tan A की सिर्फ एक ही पॉजिटिव वैल्यू मिलने वाली है यहां पर, तो यहां पर भी एक ही यूनिक ट्रायंगल बन सकता है। सो इन तीनों केसेस में हमें tan A की तो एक ही पॉजिटिव रियल वैल्यू मिल रही है। जब k 0 से बड़ा था तो इस केस में हमें दो tan A की पॉजिटिव रियल वैल्यूज मिली थी, यहां पर एक और यहां पर एक भी नहीं। अब यहां क्या हो रहा है तीनों केसेस में, सी वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द नेगेटिव पार्ट ऑफ इट, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं क्योंकि हमारा tan A तो पॉजिटिव होने ही वाला है, ये हम जानते हैं। सो हर केस में हमें एक ही पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है tan A की, दिस इज द वैल्यू वी आर इंटरेस्टेड इन। ओके, अब ये तो दो केस हुए। इसके अलावा एक और केस क्या हो सकता है, जब tan A जब k 0 हो, उस केस को भी डिस्कस कर लेते हैं। सो क्या मैं इस साइड इरेज कर सकती हूँ ब्लैक बोर्ड की, और कैन आई इरेज दिस साइड ओनली? लेट मी इरेज दिस साइड। आई होप सभी ने यहां तक नोट डाउन कर लिया था।
Okay, what would be the third case possible? The third case that would be possible is k is equals to 0. When k is equals to 0, okay, so what this equation is going to be 2x cube. सिर्फ यही इक्वेशन बनेगी. सो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनने वाला है. ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा और यहाँ पे दिस वुड बी द वैल्यू जहाँ पे tan a 0 हो जाएगा. ठीक है. सो दिस इज गोइंग टू बी वन सेट ऑफ वैल्यू दैट वी विल ऑब्टेन फ्रॉम हियर. परफेक्ट. सो अब देखिए k ग्रेटर देन 0 पे फर्स्ट केस में हमें 2 यूनिक ट्रायंगल्स मिल रहे हैं, सेकेंड केस में हमें एक यूनिक ट्रायंगल मिल रहा है, थर्ड केस में तो एक भी यूनिक ट्रायंगल नहीं मिल रहा. यहाँ पे k लेस देन 0 में तीनों केस में हमें एक ट्रायंगल मिल रहा है और यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल मिल रहा है. ठीक है. अब क्वेश्चन पढ़िए. अब क्वेश्चन में पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज ए पार्ट. दैट्स व्हाट यू हैव रिटन इज या ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड द रेंज इन विच वन आइसोसेलेस ट्रायंगल एग्जिस्ट. सो द रेंज इज फर्स्ट k equals to 0, k less than 0 and k equals to 0 में एक ट्रायंगल, k less than 0 में एक ट्रायंगल. और जब k greater than 0 हो, k greater than 0 तो फिर क्या केस होना चाहिए? जब k greater than 0 हो तो tan k by 3 f of k by 3 भी 0 हो. k equals greater than 0 and f of k by 3 is even equals to 0. What is f of k by 3? It would be 2 k by 3 whole cube minus k into k by 3 whole square plus k. So I can take k common. So we will be having 2 upon 27 and I think you can solve this easily. So let us not go into the calculation right now. Let us just go by the concept. So we have f of k by 3 equals to 0. Okay. ये question का first part हुआ. Second part of the question would be B. What is that? When there exists two isosceles triangle. जब k greater than 0 है तो इस केस में हो सकता है. So that would be k greater than 0 and f of k by 3 should be what? f of k by 3 should be less than 0. इस केस में दो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएंगे. ठीक है. हमने ये केस कवर करा जब दो यूनिक आइसोसेलेस ट्रायंगल है. ये केस है जब एक ही आइसोसेलेस ट्रायंगल है. और द थर्ड केस, इज देयर अ केस वेयर 3 आइसोसेलेस ट्रायंगल could exist? I say no. Find or null set. Because there is no case where 3 isosceles triangles can exist. देख सकते हैं जिन भी केस में या तो मैं 2 मिले या फिर एक भी नहीं मिला या फिर एक मिला. That was the so 0 was the minimum and 2 was the maximum. There is no case where a triangle 3 unique isosceles triangles exist. Clear है question? So question दिखने में तो ट्रिग्नोमेट्री का था but eventually it went to graphs curve analysis. फिर इसमें हमें tan a की रेंज भी एनालाइज करना था. सी अगर आप सोच रहे थे कि tan a की रेंज नहीं सोच पाते, हम सोच रहे थे कि एक एंगल तो ऑब्ट्यूज हो ही सकता है तो tan a नेगेटिव भी हो सकता था. सो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता. क्वेश्चन गलत हो जाता बिकॉज वी नो सिंस a एंड b आर इक्वल और एक ट्रायंगल में एक ही ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है तो tan a को तो एक्यूट होना ही पड़ेगा विच मीन्स इट हैज टू बी पॉजिटिव. परफेक्ट. और उसके बाद फिर ये केसेस एनालाइज करना कि इस केस में हमारा k पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है. तो बेस्ड अपॉन दिस दीज आर द डिफरेंट रिजल्ट्स दैट वी वुड हैव गॉट. तो दीज आर द रेंज ऑफ वैल्यूज जिनमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल एग्जिस्ट करेगा, 2 एग्जिस्ट करेंगे और 3 तो कभी एग्जिस्ट करेगा ही नहीं. सो विद दिस आई फील हमारा शीट डिस्कशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया.
And with this we have solved lots of questions based upon trigonometric ratios and functions. This sheet was perfectly concentrated just on trigonometric ratios and functions. इसके बाद वाली जो शीट मिलेगी वो इक्वेशंस और इनइक्वेशंस पे बेस्ड होकर उसके बाद वाली सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल्स पे. तो अभी तक हमारा थ्योरेटिकल डिस्कशन इन सब टॉपिक्स पे हो चुका है. तो वी विल बी डिस्कसिंग नाउ द नेक्स्ट शीट वुड बी इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस. बट बिफोर वन थिंग, डिड यू रियली फाइंड दिस क्वेश्चन इंटरेस्टिंग एंड मोर देन दैट कॉन्सेप्ट्स क्लियर है इस क्वेश्चन के? क्लियर है कैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया? सो मेन पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन वाज, फर्स्ट वी न्यू a equals to b equals to c by 180 minus c by 2 और 2a is 180 minus c. उसके बाद ये क्वाड्रेटिक निकालना by the relation tan a plus tan a plus tan 180 minus a would be equals to k. ठीक है, फिर वहां से ये क्वाड्रेटिक निकालना with the condition that tan a will be equals to x is going to be greater than equals to 0. और फिर इस क्वाड्रेटिक को इन तरीके से क्यूबिक को इन तरीके से एनालाइज करना, मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगाना, उन्हीं के बेस पे हमने इसकी कर्व ट्रेसिंग की और इन रिजल्ट्स को डिराइव किया. क्लियर है? सो लेट अस डू वन थिंग, लेट अस होल्ड आवर लेक्चर फॉर हियर. कल से हम नेक्स्ट शीट दैट इज शीट 2 इक्वेशंस और इनइक्वेशंस के बीच को सॉल्व करेंगे. सो आई होप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और फंक्शंस अब सबको क्लियर है. थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, प्रॉब्लम डिस्कशंस कंप्लीट हो चुका है, बट यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि दिस इज नॉट गोना एंड हियर. हम इक्वेशंस और इनइक्वेशंस में फिर इन कॉन्सेप्ट्स को आगे लेके जाएंगे. उसके बाद जब हम सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल्स देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आगे चलेंगे. तो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, तभी इन्हीं कॉन्सेप्ट को बेस बना के हम आगे यूज करते जाएंगे. ओके, सो लेट अस एंड आवर लेक्चर हियर ओनली एंड लेट मी नो in case you have any more doubts. Thank you.